Hello and Jai Swaminarayan to all. Today for standard 12th science we are going to continue our chapter 9, which was ray optics and optical instruments. The topic that we are going to cover is, first one is topic 9.5.2 refraction by lens. In order to understand this topic, first we will draw a figure. We will take a double-sided convex lens. This will be our principal axis passing through the lens. Now, will incident a ray from our convex lens from this point, and when it will pass the convex lens, it will get refracted and the image will be formed at a particular point, say at this point. We'll name this point as I, as our image is going to form on this point. Now, let us take the name for our object as O. So this is our object O, from where we have incident the ray, and this is the point where image is formed of that object. Now we have to take another 2 points from which the principal axis is touching the lens. This point will give it a name as B and this point as D. And we'll also draw a line, as the lens that we have taken is double-sided. So to differentiate this, we'll take a line from here to here. We'll name this point as A and this point as C. Okay. Now we'll also define the object distance and the image distance. So the distance from point O to point B is our object distance, and from that to point I is our image distance. Our image distance will be from here to this point, object distance, and from this point to our point I is our image distance. So these are the things that we have taken. Now what we'll do is, first we'll differentiate the two lenses. As we have taken double-sided lens, we'll differentiate the left portion and the right portion. Okay. So first we will take the left side portion as this. We'll draw a principal axis. Now one thing to note is that as we have taken double-sided lens, refraction will be performed 2 times, first in left side and second in right side. So first we will take the left side. Here we have incident the ray from object O, and after touching the lens it will get refracted as I am drawing here. It will be refracted and the image will be formed at this certain point. We will name this point as I1. Our object is here. Now we will, from the above figure, we will point out the points that we have taken in that figure. The first point is our object O, and second is the B point. We will write it here. This is our I1. Now, what will be the radius? As you know that when the incident ray is refracted, we have also a center of curvature on our principal axis. That center of curvature in this case will be here. We'll name it as C1. Why we name it as C1? Because we are also going to take the right hand side portion, and in right hand side portion we also have curvature at that portion. So we have to name here at C1. When we will take the right hand side portion, that center of curvature we will be defining as C2. And also we will draw a dotted line to our center of curvature. ठीक है. अभी इतना तो हमने ले लिया. आपको पता ही होगा कि जो B से C1 का डिस्टेंस होगा वो हमारा रेडियस होगा. सो उसे हम नोट डाउन कर देंगे. अप टू दिस, ये B से जो C1 होगा, that will be our radius R. We'll name it as R1 for now. अभी
दूसरी चीज नोट करने जैसी ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा एयर मीडियम है, जो रेयर मीडियम उसे हम N1 डिनोट कर देंगे और जो डेंसर मीडियम है उसे N2. सो वी डिनोट दैट टू. दिस इज आवर N1 मीडियम एंड दिस पोर्शन इज आवर N2 मीडियम. हियर नोट कैपिटल N1 एंड दिस साइड इज कैपिटल N2. अभी ये तो हुआ लेफ्ट साइड का. अभी हमें राइट साइड का भी देखना पड़ेगा. यहाँ पे 2 पॉइंट्स रह गए, ये A और C, जो यहाँ पे A और C लिया था. अभी ये तो हुआ लेफ्ट साइड का पोर्शन. अब हम राइट साइड का पोर्शन ड्रॉ करेंगे. तो राइट साइड के पोर्शन में राइट साइड कर्व्ड लेंस होगा. यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस. अभी राइट हैंड साइड में हम इंसिडेंट रे कहाँ से ड्रॉ करेंगे? राइट हैंड साइड में हम इंसिडेंट रे इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया. पहले तो इस साइड से रे यहाँ पे टच हो गई, रिफ्लेक्ट होगा, और फिर यहाँ दूसरा लेंस है तो हमारा वो इंसिडेंट रे यहाँ सेंटर से होगा. मतलब कहाँ से होगा? इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके एक लाइन बनेगी यहाँ, उसे हम दे देंगे नाम सपोज I2. अभी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो वो सिंगल रे नहीं होता, वो मल्टीपल रेज में रिफ्रेक्ट होती है. और इस केस में डबल रिफ्रैक्शन है, इसीलिए यहाँ पे जो 2 लाइंस रिफ्रेक्ट होगी वो 2 लाइंस होगी. सो ये I2 और ये एक दूसरी लाइन यहाँ पे रिफ्रेक्ट होगी, उसे हम I नेम दे देंगे. ठीक है. अभी ये तो थी हमारी 2 लाइंस जो राइट पोर्शन से रिफ्रेक्ट हुई है. अब हम इस सभी चीजों को पॉइंट आउट कर देंगे. जैसे कि यहाँ पे हमने जो N2 लिया था तो यहाँ पे N2. Then we'll also draw a normal that is drawn to the lens. So यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. तो ये जो पूरा होगा वो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल होगा और यहाँ से हमारा इंसिडेंट एंगल होगा. ठीक है. तो ये तो हुआ रिफ्रैक्टेड और नहीं, आई एम सॉरी दैट इज अ मिस्टेक. इंसिडेंट एंगल होगा यहाँ, ये 2 रे यहाँ थोड़े लंबे कर लेते हैं, तो ये होगा हमारा इंसिडेंट एंगल. इंसिडेंट एंगल हमारा ऊपर की तरफ होगा. ठीक है. तो ये होगा हमारा इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल. अभी हम इसमें रेडियस लेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ हमने R1 क्यों लिया था, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड के लेंस में रेडियस होगा तो राइट हैंड साइड के लेंस में भी रेडियस होगा, लेकिन इसमें रेडियस लेफ्ट साइड पे होगा. हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ लेफ्ट साइड पे होगा. सो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दिस केस विल बी C2. और ये जो पॉइंट है हमने यहाँ लिया था D, तो दिस पॉइंट विल बी अवर D. तो यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस होगा दैट विल बी अवर R2. ठीक है. सो ये है हमारी 3 फिगर्स एंड ऑल्सो दिस पोर्शन इज अवर N2. ओके. अभी हम क्या करेंगे, कुछ इक्वेशंस है जो डिराइव कर रही है तो वो डिराइव करेंगे. दिस इज N1 एंड दैट इज N2. ओके. नाउ पहली जो इक्वेशन है वो हमारी बेसिक इक्वेशन लिखेंगे, जो क्या थी हमारी इक्वेशन 9.15 क्या थी, यहाँ पे रिकॉल करवा देती हूँ कि वो थी N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन हमारा रेडियस R. ओके. सो पहले इस फिगर के केस में वो वैल्यूज हम देखेंगे. तो वो वैल्यूज क्या थी, तो पहले हमें यहाँ पे अपना N2 और N1 तो एज इट इज लिखेंगे. N2 अभी इस केस में हमारा V क्या है, पॉइंट D2I. ठीक है. तो वो हम लिखेंगे B2I. ठीक है. अभी दूसरा है हमारा इमेज डिस्टेंस. ठीक है. तो इमेज डिस्टेंस क्या है हमारा, पॉइंट O टू पॉइंट B प्लस N1 डिवाइडेड बाय O टू B, दैट विल बी इक्वल्स टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय हमारा रेडियस इस केस में क्या होगा,
तो हमारा रेडियस होगा BC1, क्योंकि ये जो है वो हमने इस फिगर से बनाई है, तो B to C1 हमारा होगा रेडियस 1 और से R1, सो वो है BC1। सो ये तो बेसिक फॉर्मूला है जो हमें मिल गई है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, here it will be N1 first and then N2। इसे हम दे देंगे नेम I1, ठीक है। तो इतने तक समझ आ गया कि ये OB जो है वो हमारा इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ, N1 डिवाइडेड बाई U प्लस N2 डिवाइडेड बाई V। ओके, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है O से B, वो हमारा U हमने लिख दिया, इमेज डिस्टेंस है B से I1, वो हमने V की जगह पे रख दिया, और रेडियस जो हमें यहाँ से पहली अपनी साइड का रेडियस मिला था R1, वो हमने लिख दिया BC1। नाउ यही सेम चीज इस साइड से भी, मतलब ये जो ए डी और हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इस केस में भी आएगा। हाँ, ये जो ट्राइंगल है ADC, उस पे से भी हमें क्या मिलेगा, हमारा ये इक्वेशन हम सपोज दे देंगे नाम इसे 1। अभी हमारा एक दूसरा इक्वेशन हमें मिलेगा, वो है -N2 डिवाइडेड बाई DI1 प्लस N1 डिवाइडेड बाई DI, that will be equal to N2 minus N1 upon BC2। ये जो हमें मिला है वो हमारी दूसरी फिगर से मिला है। हमने इसका तो रेडियस और वो सारी फॉर्मूला लिख दी, लेकिन इस फिगर की भी लिखनी पड़ेगी ना, तो इस फिगर में भी जब हम फॉर्मूला निकालेंगे तो हमें कुछ ऐसी फॉर्मूला मिलेगी जो है इक्वेशन 2। ये DI1 हमने कैसे लिखा कि जो D से लेके I1 है, ये इस केस में हमारा इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा और हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा D से ये I तक का हो जाएगा। मतलब ये जो है अभी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और D से I2 है वो हमारा इमेज डिस्टेंस, D से जो C2 है वो हमारा रेडियस R2 हमने लिखा ही हुआ है। तो इस केस की जो फॉर्मूला उसके बेसिस पे हम लिखेंगे तो ऐसी बनेगी, और इस फिगर की जो फॉर्मूला हम अपनी पुरानी फॉर्मूला के बेस पे लिखेंगे तो हमें इक्वेशन 1 जैसी एक इक्वेशन मिलेगी। अभी ये तो था इन दोनों का नॉर्मल इक्वेशन जो हमने पिछले क्लास में डिराइव किया था। अभी इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। जब आप देखोगे तो यहाँ जो BC1 है, जो ये पोर्शन, वो DI से काफी मिलता जुलता आपको, DI1 से काफी मिलता जुलता आपको लगेगा, ठीक है। तो उससे हम लिख सकते हैं कि फॉर अ थीन लेंस, ये जो लेंस है ये ज्यादा थिक तो नहीं है, ये बहुत ही पतला है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हम 1 की जगह बुक के हिसाब से 9.17 लिखेंगे और इसे 2 की जगह 9.18 लिख देंगे फॉर योर सिंप्लिसिटी। ओके, सो ये जो DI1 हमने लिया है, यहाँ पे I2 के बदले हम I1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो B से I1 तक का जो डिस्टेंस है, B से I1 तक का, वो ये D से I1 जितना ही आपको फिगर में दिखेगा। तो हम लिख सकते हैं कि BI1 इज इक्वल्स टू DI1। अभी ये तो लिख लिया, लेकिन ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि उससे हमें एक तीसरी इक्वेशन बनानी है जो कैसे बनेगी, इन दो इक्वेशन को ऐड करके, मतलब दिस इक्वेशन प्लस ये दूसरी वाली इक्वेशन। तो अभी इन दो इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमें एक नई इक्वेशन मिलेगी।
तो वो इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, हमारी इक्वेशन 9.19 जो कैसी होगी, पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो है ये दैट इज इक्वल्स टू दिस, तो ये दो तो कॉमन हो जाएगा। हमारे पास रहा NY/OB N1/OB और N1 बाई D1, तो हम उसे एक साइड लिख देंगे N1 डिवाइडेड बाई OB प्लस N1 डिवाइडेड बाई DI। ये एक साइड की हो गई। अभी राइट हैंड साइड की देखनी पड़ेगी, तो राइट हैंड साइड की हम लगे N2 माइनस N1 दोनों में कॉमन है, तो वो हम कॉमन निकाल लेंगे N2 माइनस N1। और ये जो BC1 डिवीजन में, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 तो होगा दोनों में, तो 1 बाई BC1 और 1 बाई DC2 वो ब्रैकेट में ले लेंगे, तो दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई BC1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई DC2। ये जो हमारा इक्वेशन है वो इक्वेशन 9.19 हमें मिलेगा। ठीक है, ये 9.19 हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके बनाया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसका थोड़ा एक्सटेंड करके। तो OB हमारा क्या है, O to B इज अवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो DI है वो है D से I1 या D से I जो भी कहो, DI यहाँ पे I कर दिया मैंने, D से I है हमारा इमेज डिस्टेंस। तो इससे मैं इस फॉर्मूले में OB और DI की वैल्यू रखूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, N1 डिवाइडेड बाई U प्लस N1 डिवाइडेड बाई V इक्वल्स टू, अब हमारा जो BC1 और DC2 है उसको हम अभी एज इट इज ही लिखेंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, दैट दिस विल बी इक्वल टू, ये जो इक्वल टू के जो राइट साइड वाला है वो हम अभी ऐसे ही रखेंगे, तो हम वैसे ही लिख देंगे N2 माइनस N1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई BC1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई DC2. So this is formed a new equation which is equation 9.20. So अब तक जो हमें इक्वेशन मिला था वो ये था कि N1/U प्लस N1/V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू 1/BC1 प्लस 1/DC2। इसे हमें नाम दिया था 9.19 इक्वेशन 19.20। अभी इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, 19.20 इक्वेशन को ही एक्सटेंड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये N1 हम कॉमन निकालेंगे। सो N1 कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचा, 1/U प्लस 1/V दैट इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 इंटू 1/BC1 प्लस 1/DC2। अभी ये जो इतना जो पोर्शन है आपको इसको देख के याद आ रहा होगा कि 1/U प्लस 1/V इज इक्वल्स टू 1/F, राइट। ये हमने प्रीवियसली जब मैं आपको रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि ये जो फॉर्मूला हमें मिली है 1/F की है, 1/F इज इक्वल्स टू 1/U प्लस 1/V। तो इसकी जगह हम 1/F लिख लेंगे, सो N1 इंटू 1/F लिखेंगे, तो N1/F ऐसे भी हो सकता है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे N1 डिवाइडेड बाई F इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 होल मल्टीप्लाई बाई 1/B इंटू C इंटू 1 प्लस 1/DC2। सो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है 19.20। ठीक है, तो ये हमारा 19.20 इक्वेशन मिल गया। अभी हम अज्यूम करेंगे कि जिस पॉइंट पे हमारी इमेज फॉर्म करती है वो इंफिनिटी है, मतलब जो O to B, सॉरी हम अज्यूम करेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा है इंफिनिटी पॉइंट पे, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट कहीं भी रख सकते हैं, तो हम अज्यूम करेंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, सो O to B को हम इंफिनिटी अज्यूम करेंगे और इट विल बी फॉर्म्ड एट अ फोकस F। ठीक है, और ये हमें फोकल लेंथ मिल गई। नाउ व्हाट विल डू इज, हमारा जो B से C1 है वो हमारा R1 है और D से जो C2 है वो R2 है, तो यहाँ पे हम R1 और R2 लिख सकते हैं, BC1 इज R1 एंड DC2 इज और R2। तो यहाँ पे हम
R1 और R2 लिख सकते हैं, लेकिन नोट करने वाली बात क्या है कि ये जो DC2 है ये R2 लेफ्ट साइड है तो वो आएगा नेगेटिव में, सो हम इस इक्वेशन को एक्सटेंड करेंगे। और दूसरी बात ये जो N1 है ना वो हमारा एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मैंने आपको बताया था कि एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो N1 की जगह हम डायरेक्ट 1 लिख लेंगे। सो व्हाट विल गेट इज 1 डिवाइडेड बाय F इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 एज इट इज ही रहेगा। नहीं, देयर इज अ मिस्टेक, सॉरी, ये N1 है, ये हमने कब लिखा था N1 इंटू 1 बाई एफ, यहाँ पे 1 बाई एफ लिखा था और उससे n मल्टीप्लाई करा था। तो अभी जब हम ये N1 को ना राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई N1 इंटू 1 बाई BC1 की जगह हम लिखेंगे R1 और DC2 की जगह लिखेंगे हम R2। अभी इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे अब हम N1 की वैल्यू 1 लेंगे, तो अब हम जब 1 यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 1 बाय एफ विल बी इक्वल्स टू N2 माइनस N1। अभी आप दूसरी चीज ये भी देखोगे कि यहाँ N1 कॉमन है, मतलब N1 N2 के नीचे भी आ सकता है और N1 N1 के नीचे भी आ सकता है। लेकिन अगर लेट मी शो यू, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं N2 बाई N1 माइनस N1 बाई N1। अभी N1 N1 कट होगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। N2 बाई N1 को हम N21 भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में। सो हम डायरेक्ट लिखेंगे N21 माइनस 1 इंटू, ये माइनस R2 था तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो हमें क्या मिलेगा बेसिकली 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो ये जो पूरी हमें इक्वेशन मिली है दैट्स अवर न्यू इक्वेशन, इक्वेशन 9.21। ओके, ये हमारी न्यू इक्वेशन है, इक्वेशन 9.21 जो हमने 9.20 में राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट करके बनाई है, ठीक है। अभी इससे हम कह सकते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये जो प्रॉपर इक्वेशन है, ये जो हमने 9.21 डिराइव की है, इसे हम कह सकते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। नाउ अभी इसे हम थोड़ी और एक्सटेंड करेंगे, कैसे, लेट मी शो यू। जो 9.19 वाली फॉर्मूला हमारे पास थी वो क्या थी कि N1 डिवाइडेड बाई OB प्लस N1 डिवाइडेड बाई DI इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 होल मल्टीप्लाई बाई 1 बाई BC1 प्लस 1 बाई BC2। ये थी हमारी 9.19 नंबर की फॉर्मूला। ये 19 नहीं है, ये 9 है, ये मेरी थोड़ी मिस्टेक है। सो 9.19 और 9.20 के बेसिस पे हमें क्या मिलता है, मतलब अब इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड तो हमें मिलेगी ये 1 बाय एफ है यहाँ पे, और यहाँ पे N1 बाय OB प्लस N1 बाय DI है। तो हमें क्या मिलेगा, एक तरफ N1 बाय एफ और एक तरफ ये, मतलब हम क्या लिखेंगे, ये जो साइड है इसको एक तरफ, उसके इक्वल टू ये साइड लिखेंगे लाइक दिस, दैट N1 बाय OB प्लस N1 डिवाइडेड बाय DI इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ या N1 बाय एफ भी लिख सकते हैं। सो ये एक साइड हमने लिख ली। इन दो इक्वेशन 9.21 और 9.19 को कंपेयर, सॉरी 9.21 नहीं 9.20 और 9.19 को कंपेयर करते हो, ये वाला, नॉट दिस वन, N1 बाय एफ और ये वाला जो है उसको एक साइड लिख लिया, वो इक्वेशन हमें मिला 9.22। अभी इतना तक मिल गया। अभी हम इसमें
इस फिगर के बेस में वैल्यूज पुट करेंगे, मतलब ये जो u है वो OB की जगह लिखेंगे, ये जो V है वो DI की जगह लिखेंगे, और जो N1 की जो हमारे पास जो वैल्यूज है N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 1 होगा, एयर मीडियम है इसलिए, तो हम उसी इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करेंगे। N1 की जगह हम N1 इज इक्वल टू 1 ड्यू टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो 1 डिवाइडेड बाय OB क्या है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो है U। अब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड में है मतलब वो नेगेटिव होगा, सो ये माइनस U होगा, प्लस N1 1 और DI है हमारा इमेज डिस्टेंस, यहाँ लिखेंगे V और 1 बाय F। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, U को इसके पीछे ले जाके, तो 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय F। ये जो हमें एक इक्वेशन मिला है ये आपने पहले भी देखा होगा, ये है हमारा, ये साइन कन्वेंशन अप्लाई करके ये है हमारा मिरर इक्वेशन 9.23। सो लेट्स समराइज कि हमने क्या किया। पहले तो हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया डबल साइडेड, उसकी लेफ्ट साइड यहाँ ड्रॉ की, राइट साइड यहाँ पे ड्रॉ की। अभी हमारे पास इक्वेशन 9.15 था, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r। वो इक्वेशन लेके इस लेंस का और इस लेंस की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट की और दो इक्वेशंस बनाए। उस दो इक्वेशन को ऐड करके हमने तीसरा इक्वेशन बनाया था ये 9.20 वाला। अभी 9.20 को हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया ये BC1 और DC2 की वैल्यू रख के, तो वो इक्वेशन हो गया 9.21। उसके बाद हमने क्या किया कि जो 9.19 वाला था उसको और 9.20 वाला था उसको कंपेयर किया, तो उसकी जो राइट साइड थी वो सेम थी, इसलिए वो दोनों कैंसल आउट हो गई और हमें लेफ्ट हैंड साइड बाकी रह गई। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वल कर दिया कि n1 बाय f इज इक्वल्स टू कंपेयर किया लेफ्ट और राइट हैंड साइड को यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हमने कंपेयर किया तो ये मेन फिगर के बेसिस पे ये जो सारी वैल्यूज थी वो हमने इसमें पुट की और n1 का एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिया, तो हमें मिला ये पर्टिकुलर इक्वेशन 1 बाय f इज इक्वल्स टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u जो था मिरर का इक्वेशन। इस पे हमने साइन कन्वेंशन अप्लाई की थी। अभी यहाँ तक आपको समझ आ गया। अभी हम देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले तो हम यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे एक इतनी हाइट का ऑब्जेक्ट लेंगे। अब क्या करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट का रे यहाँ पे लेंस पे इंसिडेंट होगा तो वो रिफ्रैक्ट होके इस पॉइंट पे एक इमेज बनाएगा आई। अभी एक ऑब्जेक्ट में से एक रे तो इंसिडेंट होगा नहीं, दो तीन हो गए तो हम दूसरा एक रे इंसिडेंट करवाएंगे यहाँ पे। अभी जब यहाँ पे कोई इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सपोज के x, तो जब इस सेंटर पे लेंस के एकदम सेंटर से कोई रे पास होगा तो वो रिफ्रैक्शन सफर नहीं करेगा, वो यहाँ पे डायरेक्ट ही सीधा चला जाएगा। अब तीसरा लेंगे, हमारा यहाँ पे एक फोकस f ले लेंगे। नाउ f फोकस लेने के बाद कोई रे अगर इस फोकस f से पास होगा और लेंस को टच करेगा तो वो सीधा ही ट्रैवल करेगा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का नेचर है कि यहाँ पे तो एक फोकस f हमने ले लिया, लेकिन दूसरी चीज ये है कि जब ये पहला रे जो यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा ना तो इस साइड भी एक फोकस होगा f डैश, तो वो उस फोकस से पास होता हुआ जाएगा। तो हमारी जो इमेज है वो कुछ यहाँ पे बनेगी। सो बेसिकली क्या है कि कोई एक h हाइट का ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसमें से तीन रे इंसिडेंट करवाते हैं। पहला रे सीधा जाके रिफ्रैक्ट होगा हमारे राइट साइड के फोकस पॉइंट पे, दूसरा रे जो है वो इसके सेंटर पे पास होके सीधा ही होगा, वो रिफ्रैक्शन उस पे रिफ्रैक्शन को वो सफर ही नहीं करेगा। और तीसरा जब हम लेफ्ट साइड के फोकस से उसको
इंसिडेंट करेंगे तो लेंस को टच करके वो सीधा ट्रैवल करेगा हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉन्वेक्स लेंस की, जब भी हम किसी रे को उससे इंसिडेंट करते हैं तो वो कॉन्वर्ज हो जाता है। So convergence is the nature of convex lens। अभी सेम हम कॉन्केव लेंस में देखेंगे। तो कॉन्केव लेंस कुछ ऐसा होता है जिसमें उसकी एजेस थिक होती है और उसका जो सेंटर होता है वो थिन होता है। अभी यहां से हम एक प्रिंसिपल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सेम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, उससे हम पहला रे इंसिडेंट करवाएंगे। तो एक रे जब हम यहाँ से इंसिडेंट करवाएंगे तो कॉन्वेक्स लेंस की नेचर के हिसाब से वो डाइवर्ज हो जाएगा, मतलब ऐसे ऊपर के साइड रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली हम एक दूसरा रे रिफ्लेक्ट कराएंगे यहाँ पे सेंटर पॉइंट से। तो कॉन्केव लेंस की तरह कॉन्वेक्स लेंस की तरह कॉन्केव लेंस में भी ये जो सेंटर से जो रे पास करता होगा वो कोई रिफ्रैक्शन से सफर नहीं करेगा, वो सीधा ही इंसिडेंट हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे एक फोकस एफ है, यहाँ पे भी एक फोकस एफ होगा। अब जब हम इस फोकस से देखेंगे, यहाँ पे एक फोकस एफ ले लेते हैं, तो ये जो ऐसे डाइवर्ज हुआ है इसको हम जब बैकवर्ड में ड्रॉ करेंगे ऐसे डॉटेड, तो वो इस फोकस से पास होता हुआ होगा और इस फोकस से पास होता हुआ जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगी, इमेज आई। सो मेन पॉइंट इज कि कॉन्वेक्स लेंस का जो नेचर होता है वो कॉन्वर्जेंस है और जो कॉन्केव लेंस का जो नेचर होता है वो डाइवर्जेंस है। These are the characteristics of concave lens and convex lens. Now we will move to our next topic, which is power of lens. पावर ऑफ लेंस से पे मूव करने से पहले रिफ्रैक्शन का एक छोटा सा पॉइंट है वो देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या थी, m इज इक्वल्स टू एच डैश डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमें कॉन्केव लेंस के केस में क्या मिलता था, ये h जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट है और ये जो h डैश है वो इमेज की हाइट है, तो v बाई u मिलता था। लेकिन हमारे जो कॉन्केव लेंस के केस में ना u नेगेटिव था तो यहाँ माइनस u लिखेंगे। और सेम कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो कॉन्वेक्स के केस में हम लिखेंगे m इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई u, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। सो कॉन्वेक्स लेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी v बाई u, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में और कॉन्केव लेंस के केस में ये ही m की वैल्यू क्या मिलेगी, m इज इक्वल्स टू माइनस v बाई u। सो दिस इज द स्मॉल पॉइंट ऑफ मैग्निफिकेशन। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज पावर ऑफ लेंस, जिसमें हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस की पावर को देखेंगे।